Okay, we'll discuss the paper. How was the exam? कैसा गया सभी का? Simple था? Okay. कितना score highest है? Who has got the highest marks? कितना है बेटा स्नेहा आपको? What was your score? 35. How much? 35. 35. Okay. Out of कितने marks का था? 40 ना? Yes, sir. Okay. 40 में 35. Very good. बाकी किसी का और? I too got 35 out of 40. Excellent बेटा, क्यों रहा, बहुत बढ़िया. और कोई? अनुष्का, what was your marks बेटा? Okay. Hitakshi got 40. Very good. Hitakshi. Aditya 30. Good. आदित्य थोड़ा और चाहिए था बेटा, पेपर वाज इजी, थोड़ा मार्क्स और चाहिए. 35 इज ओके, थोड़ा सा और चाहिए. ठीक है, 30 इज आल्सो गुड. चलो डिस्कस करते हैं पेपर आज. एक्सीलेंट हिताक्षी, बहुत बढ़िया. चलो क्वेश्चन नंबर 1, विल डिस्कस दिस. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट at a speed of 6 meters per second. So velocity of person is given, and the person was going in the east direction. East में जा रहा था with 6 meters per second. Okay, and feels that wind is blowing south at 6 meters per second. So velocity of wind with respect to person, क्योंकि वो आदमी को feel हो रहा है, and he feels that wind is blowing towards south at a speed of 6 meters per second. So velocity of wind with respect to person is given, and this is equal to 6 meters per second. और ये किधर की तरफ जा रहा है? साउथ की तरफ. स्टेटमेंट से क्लियर है. And feels that, मतलब उसको फील हो रहा है, उस आदमी को फील हो रहा है. तब implies कि velocity of wind with respect to that person is 6 meters per second in the south direction. What will be the actual velocity of the wind? So आपसे wind का actual velocity पूछा गया है. कैसे कोई एक बता दो मुझे. गौरव, how we have approached this? कैसे सॉल्व किया आपने? बोलो कोई. See, let's say north, south, east and west. ऐसे assume कर लेते. For simplicity we are assuming that कि ये मेरा x axis है और ये y axis है. आप किसी भी एक्सिस को x ले सकते हो, कहीं पे भी y ले सकते हो. मैं ऐसा ले लेता हूँ. If you want you can reverse this also. आप इसको चेंज भी कर सकते हो. बस हमेशा ये ध्यान में रखना है कि x axis एंड y axis प्लॉट करते वक्त दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. बाकी आप कोई भी ओरिएंटेशन रख सकते हो. So I am having this as my x-axis and this as my y-axis. Now see, ये जो person है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब person इधर की तरफ जा रहा है. So velocity of person is in this way. So can I say बेटा कि velocity of person is 6 I cap meter per second? क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को x-axis माना है, so therefore I have written 6 I cap meter per second. Can we say this? Yes, sir. Now velocity of wind with respect to person is 6 meters per second south, मतलब इधर की तरफ. ये साउथ डायरेक्शन है. मैंने नॉर्थ को y एक्सिस माना था, तो साउथ मेरा नेगेटिव y एक्सिस हो जाएगा. So therefore we can say minus j cap. Yes, superb. Velocity Minus 6 cap. correct, superb. Minus of j cap meter per second. तुम्हें चाहिए तुम साउथ वाले को j बना दो, उसका रिवर्स को माइनस j बना दो. That is up to you. जो आपको करना है वैसे करिए. Now once we are having this, अब हम क्या करेंगे? That velocity of wind with respect to person. So for this, हम करेंगे velocity of wind with respect to person is velocity of wind minus of velocity of person. So velocity of wind with respect to person they have given us is what? Minus of 6 j cap is equal to velocity of wind minus velocity of person. कितना हो गया? 6 I cap. Implies that velocity of wind will be equal to 6 I cap minus of 6 j cap. अभी आपसे velocity of wind का magnitude पूछा गया है. So velocity of wind का magnitude हो जाएगा under root 6 का square plus 6 का square. So velocity of wind will be equal to 6 root 2 meter per second. हाँ, okay.
6√2 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर स्नेहा, जस्ट अ सेकेंड। 6√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब आप ऑप्शन में देखोगे, सो यू आर हैविंग टू ऑप्शन रिलेटेड विद 6√2। एक तो ये आपका ये ऑप्शन नंबर ए था, वो भी 6√2 था, और ऑप्शन नंबर डी भी 6√2 था। तो उनमें से कौन सा लेना चाहिए मुझे? दोनों 6√2। साउथ ईस्ट वाला, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कैसे डिसाइड किया साउथ ईस्ट ही लेंगे? क्यों, कैसे डिसाइड किया बेटा कि साउथ ईस्ट ही लेना चाहिए मुझे? क्योंकि उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट में होगी, क्योंकि वो ईस्ट और साउथ में ट्रेवल कर रहे हैं ना। एक चीज देखो, वेलोसिटी ऑफ विंड अगर आप देखोगे, सो आई एम हैविंग पॉजिटिव आई कैप। पॉजिटिव आई कैप मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि विंड का वेलोसिटी मुझे पॉजिटिव आई कैप में मिल रहा है इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ विंड मुझे नेगेटिव जे कैप में मिल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो क्या वेलोसिटी ऑफ विंड जो होगा वो ईस्ट और साउथ, क्या इसके इस तरह के होगा वेलोसिटी ऑफ विंड? यस सर। So the correct answer will be in southeast direction. So correct answer क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? Option number A. Is it clear with this question? Yes, sir. Very Yes. good. So, next, question number 2. Question number 2. Okay. Question number 1 clear है? Is it clear to everyone? Okay. Question number 2. कैसे करोगे अप्रोच इसको? क्या कह रहा है? Two bodies are thrown simultaneously from the tower with the same velocity v0, one vertically upward, the other vertically downward. So क्या कह रहा है? Let me have this as a tower here. इसे टावर ले लेता हूं मैं। यहाँ से दो वेलोसिटी, दो बॉल्स को फेंका गया है। So two ball has been projected from here. So एक बॉल को हमने यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका है, let's say with v0 meter per second, and the second ball is being projected downward as v0 meter per second. So question में बोला two bodies are thrown simultaneously from the tower with same initial velocity v0, one vertically upward and the other vertically downward. The distance between the two bodies after time t is, आपसे पूछ रहा है distance between two bodies after time t is. So t सेकेंड्स के बाद इन दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। कैसे अप्रोच करोगे बोलो इसको, कोई बता दो एक, हाउ टू अप्रोच दिस? S equal to ut plus half at square in upward and downward for upward and downward motion. उससे करने से बेहतर है क्या है, क्यों रहा ऐसे करे, इस पे भी ग्रेविटी जी नीचे लगेगा 10 मीटर सर पर हम सेकंड। हाँ बोलो बोलो। सेम मैं यही बोल रहा था कि हम एक्सीलरेशन कैंसिल कर सकते हैं। करेक्ट। सो एक काम करते हैं, हम 2 को ऑब्जर्वर बना देते हैं। तो जब आप 2 को ऑब्जर्वर बना दोगे तो 2 के रिस्पेक्ट में जरा बात करते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी एंड वी आर हैविंग दैट कि मेरा अपवर्ड डायरेक्शन प्लस है और डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। अब आप देखो, मैंने 2 को ऑब्जर्वर बना दिया है। सो वी वांट टू हैव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 is initial velocity of 1 minus initial velocity of 2. So initial velocity of 1 with respect to 2. So 1 का velocity ऊपर की तरफ था, that will be positive v0 minus 2 का velocity नीचे की तरफ है, that is minus of v0. So am I having initial velocity of 1 with respect to 2 will be equal to what? 2 v0 meter per second. ये आ जाएगा। Now I have made this 2 as an observer. So मैंने जब 2 को observer बना दिया and then I have calculated the initial velocity of 1 with respect to 2 is initial velocity of 1 minus initial velocity of 2. 2 का velocity is in the downward direction, so therefore I have taken that as negative. So v0 minus of minus v0 minus minus plus हो जाएगा, so that will be 2v0. In the same way, आप calculation कर दो, acceleration of 1 with respect to 2 is acceleration of 1 minus acceleration of 2, है ना? अब देखिए 1 का भी एक्सेलरेशन नीचे और 2 का भी एक्सेलरेशन नीचे, सो दोनों नेगेटिव है। एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 will be minus g minus of minus g because both are in the downward direction. So acceleration of 1 with respect to 2 कितना हो जाएगा बेटा, minus g plus of g कैंसिल हो गया, implies acceleration of 1 with respect to will it be equal to 0 meter per second square. तो क्या 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में 0 है? अब मुझे एक बात बताइए,
अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा सकता हूँ? Yes, sir. So since it is 0 here, आप सिंपली क्या कर दो, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ओवर टाइम. सो टाइम आप स्पीड आपका था 2v0, डिस्टेंस आपको निकालना है x टाइम t. So from x will be equal to what? 2v0 into t. This is the correct answer. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा था? Which one was the right? Option number B. Am I clear? मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, is it clear both everyone? Yes, sir. Very good. बाकी लोग? Yes, sir. Clear. Yes, sir. But I solved using the method which I told. yeah, you have taken from the ground ना, इसको भी मूव करा, इसको भी मूव करा और बाद में you have added them. Yes. Then plus and minus gets cancelled. Then You can do that way also. But my point is, whenever there will be two objects moving now, always place one object and rest, and then solve according to that. So that will simplify your calculation. है ना? So make this habit. जब भी आपको दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखेगा, एक ऑब्जेक्ट को आप रोक दो और उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप दूसरे ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देके यू सॉल्व इट. दैट विल बी बिट इजी. Am I clear? yes. Very good. वैसे ग्राउंड से भी करोगे तो सही है, गलत नहीं है, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा सा कभी कभी लेंदी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. सी क्वेश्चन नंबर 3 says what बेटा, क्या कहता है कि a bus moves on a horizontal path with a constant acceleration a. So horizontal road पे एक बस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. So on the horizontal road, bus is moving with constant acceleration of a meter per second square. Constant acceleration से move कर रहा है. A boy on the bus drops the ball outside. So एक लड़का है on the bus, he drops the ball outside. बस के बाहर ये बॉल को गिरा रहा है. The acceleration of the ball with respect to earth and the bus respectively are. So आपसे पूछा गया acceleration of the ball with respect to bus and with respect to ground. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एक्सेलरेशन होगा बेटा? व्हाट विल बी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? G. हाँ, सिंपली Acceleration due to gravity. करेक्ट. अब जैसे ही इसको आपने रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद क्या हो गया? जैसे ये कांटेक्ट ब्रेक हुआ बस और ये बॉल का, सो एज द कांटेक्ट ब्रोकन ना, जैसे ये कांटेक्ट टूट गया तो इस पे सिंपली अभी क्या लगने लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे, so with respect to ground इस बॉल का acceleration will be simply equal to what? G meter per second square. ये तो एक आंसर हो गया. अच्छा, with respect to बस क्या होगा? बस क्या होगा acceleration? Let me assume this to be my x axis और ये वाला डायरेक्शन को मैं y axis ले लेता हूँ. So, can we say this कि acceleration of ball with respect to bus will be equal to acceleration of ball minus acceleration of bus. बोल सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन यही हमसे पूछ रहा है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बस मेरे से पूछ रहा है. सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बस इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस सिंपली. सो कैन वी से दिस बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बस, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बस will be equal to acceleration of bus ball नीचे की तरफ gravity इस पे लग रहा है g, so that we can say g of j cap, and acceleration of bus is in this direction which is ai cap. So can we say that acceleration of ball with respect to bus will be equal to ai cap plus g ai cap g j cap. So अगर आपको magnitude चाहिए acceleration of ball with respect to bus का, so this will be simply equal to what? Under root of a square plus c square. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखोगे, सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल का एक्सेलरेशन विल बी सिंपली इक्वल टू g, व्हिच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन बस के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन होगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो.
सर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बस का एक्सेलरेशन क्यों एक्ट नहीं होगा सर उस पर? क्योंकि मैंने बताया था, याद करो, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हमने कि जैसे ही कांटेक्ट टूटेगा, कांटेक्ट टूटने का मतलब है कि एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है। एक्सेलरेशन कांटेक्ट होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। होगा क्या हर्षल, समझो। जब तक ये बॉल इस आदमी के हाथ में था तो बॉल एक्सेलरेट होने की वजह से आदमी एक्सेलरेट हो रहा था और आदमी के साथ साथ ये बॉल भी एक्सेलरेट हो रहा था, क्योंकि वो बॉल उस आदमी के हाथ में था। अब जैसे इस आदमी ने बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल को छोड़ दिया तो ये कांटेक्ट टूट गया ना इसके बीच में, बॉल और आदमी के बीच में। जैसे ही कांटेक्ट टूटा तो बस का जो एक्सेलरेशन है वो इसको कैरी नहीं होता। वेलोसिटी कैरी होता है बट एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता। जैसे ही इसको छोड़ा, छूटने के बाद ये एक्सेलरेशन खत्म, सिर्फ इस पे ग्रेविटी जी नीचे लगेगी। Am I clear? हर्षल? यस सर। हाँ, सो एक्सेलरेशन, अगर आपने कांटेक्ट ब्रेक किया है, कांटेक्ट ब्रेक करने की वजह से एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है, वेलोसिटी कैरी होती है, वेलोसिटी विल गेट कैरीड, लेकिन एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस है, जैसे ही कांटेक्ट छूटा एक्सेलरेशन खत्म। शायद डिस्कस किया था हमने ये प्रॉब्लम पहले इस टाइप। सिद्धांत क्यों क्लियर है बेटा? हर्षल समझ में आया कैलकुलेशन? यस सर। Yes. Fine. Remaining students, is it clear to all of you? सबको clarity है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Super. Question number 4. Question number 4. What they are saying is कि ये horizontal surface है, यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया। लेट मी से कि इसका वेलोसिटी दिया है u by √3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज नॉट गिवन मीटर, मैं मान लेता हूँ। ये एंगल 30 डिग्री है। एंड देन दे आर सेइंग कि यहाँ से x डिस्टेंस आगे, सो फ्रॉम हियर x डिस्टेंस आगे एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, इसको आप ऐसे फेंक रहे हो u मीटर पर सेकेंड से, and such that it is having an angle of 60 degree. तो आपसे पूछ रहा है the time after which the horizontal distance between them becomes 0. तो आपसे पूछा गया है time after which horizontal distance between them become 0. कैसे करोगे इसको, कोई बता सकते हो? क्या करेंगे इसमें, क्या लॉजिक यूज करें, क्या लॉजिक यूज करेंगे? एनीवन कैन टेल मी? बोलो कोई। देखिए, एक काम करो बेटा, ये u√3 था ना, ये एंगल 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। एक काम करो, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दो, कितना हो जाएगा? इज इट u by √3 cos of 30 डिग्री, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u by √3 sin of 30 डिग्री। इन द सेम वे ये u है, इधर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस u का कंपोनेंट इधर ब्रेक करिए, u of cos 60 डिग्री, और इस u का कंपोनेंट आप वर्टिकल में ब्रेक करिए, कितना आ जाएगा? u of sin 60 डिग्री, है ना। मान लो मैं ये 1 पकड़ता हूँ, इसको 2 पकड़ता हूँ। अब अगर आप along horizontal देखो, और मैं 2 को मान लो ऑब्जर्वर बना देता हूँ, so I am making this 2 as observer. So along horizontal, क्योंकि horizontal distance ही मुझे 0 करना है, so अगर हम along horizontal सोचे, along horizontal, so velocity of 1 with respect to 2, will it be equal to velocity of 1 minus of velocity of 2? मैं horizontal के along देख रहा हूँ, so along horizontal what we can say कि velocity of 1 with respect to 2 will be equal to velocity of 1 along horizontal minus velocity of 2 along horizontal. Just for simplicity, we are having this direction as x और ये वाला डायरेक्शन को आप y assume करो। So मैं ये डायरेक्शन को x लेता हूँ, ये डायरेक्शन को y लेता हूँ, so ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। So velocity of 1 with respect to 2, ये कितना हो गया बेटा? u by √3 of cos 30 डिग्री प्लस x y लेने से अच्छा है आप ऐसे कर दो, ये डायरेक्शन को मैं प्लस ले रहा हूँ तो ये रिवर्स का डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस u of cos 60 डिग्री। Now what is the value of cos 30 बेटा? √3 by 2 ना, so velocity of 1 with respect to 2 कितना हो जाएगा? u by √3
into √3 by 2 minus minus plus cos 60 is u by 2. cos 60 कितना होता है? Is it equal to u by 2? Yes, sir. Yes, sir. Now this √3 and this √3 will get cancelled. So from here, velocity of 1 with respect to 2 will it be equal to u by 2 plus of u by 2. अगर हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा u मीटर पर सेकेंड. अब मुझे एक बात बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या? कोई एक्सेलरेशन है क्या हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज देयर एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन? No, sir. No, नहीं, no, नहीं. no. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि हम यूज कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. अब मुझे एक बात बताइए, आपसे कह रहा है कि इन दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है और इसको तो मैंने रोक दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके रिस्पेक्ट में इसको x चलना पड़ेगा, तब जाके दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 होगा. सो स्पीड आपका u हो गया, डिस्टेंस x होगा, टाइम t. सो फ्रॉम हियर t विल बी इक्वल टू x. इज इट फाइन? समझ में आया कैलकुलेशन? So correct answer is x by u, which is option number B here. कार्तिक क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? हिताक्षी का सही था सब. पार्थ, हर्षल, अदिति, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कंसेप्ट क्या मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे 2 को रोक दिया है. अगर मैंने 2 को रोक दिया है और 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस मुझे 0 करना है, अगर मैंने 2 को रोक दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 को मूव करके 2 के पास आना पड़ेगा, 2 के रिस्पेक्ट में, तभी दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 होगा. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का अप्रोच लगाया, डिस्टेंस वहां पे x के बराबर हो जाएगा, स्पीड आपका u है. सो u इज इक्वल टू x by t, so therefore t will be equal to x by u. वेरी सिंपल. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर 1 की x डायरेक्शन में वेलोसिटी u by √3 cos 30 है ना, तो वो क्यों नहीं ली सर, u क्यों ली? नहीं, u by वही तो लिया है, u by √3 cos 30. इसको सॉल्व किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उसमें तो रिलेटिव लगाया ना. मैंने 2 को रोक दिया है, 2 के रोकने के बाद किया है. सो जब मैंने 2 को रोक दिया बेटा देखो, सो 2 को रोक दिया, सो मैंने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2. 1 का वेलोसिटी कितना है, u by √3 cos 30, u by √3 cos 30. वेलोसिटी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, माइनस u cos 60, क्योंकि ये डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया तो रिवर्स वाला माइनस हो जाएगा. अब देखो, ये जो मेरा वेलोसिटी u आया है ना, दिस u इज द वेलोसिटी ऑफ 1. ये 1 का वेलोसिटी है 2 के रिस्पेक्ट में, और बाद में हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगाया. तो दोनों को मूव कराने से अच्छा मैंने समझा कि 2 को रोक देता हूं और 2 के रिस्पेक्ट में 1 को वेलोसिटी देता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा देता हूं. समझ में आया बेटा? इज इट क्लियर? यस सर. डाउट है हर्षल? एक और लॉजिक से करो कि समझ में आ गया? नहीं, समझ में आ गया सर. राइट, डाउट रहेगा तो दोनों को चला के कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. इफ यू हैव डाउट्स आई विल डू इट बाय अदर अप्रोच. या ये समझ में आया क्लियर ढंग से? यस. गुड. रिमेनिंग स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? Yes, sir. समर्थ, श्रेया, सृष्टि क्लियर बेटा? मुन्मय, भूमिका क्लियर है सबको पॉइंट? Yes, sir. Okay. Next. So question number 4 हो गया. Next question. ये हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, अ ट्रेन रनिंग पास्ट अ टेलीग्राफ पोल इन 15 सेकेंड्स. सो एक ट्रेन है which is running and that passes a telegraph pole in 15 seconds. So पोल को पास कर रहा है in 15 seconds. Okay. अब क्या कह रहा है, and through a tunnel of 450 meter, and there is a tunnel of 450 meter in 45 seconds. In 45 seconds. So there is a train which is passing a pole, telegraph pole in 15 seconds. So वो 15 seconds में पोल को क्रॉस कर जा रहा है और वो टनल को क्रॉस कर रहा है, जिस टनल का लेंथ दिया है आपने को 450 मीटर्स. सो टनल को क्रॉस कर रहा है वो 45 सेकेंड्स में. तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन. फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन.
कैसे किया है, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन कैन टेल मी? हिताक्षी आप बताओ बेटा, कैसे किया है आपने? हिताक्षी कैसे सॉल्व किया, बोलो, हाउ यू अप्रोच दिस? क्यों रहा आपका हुआ बेटा सॉल्व ये? नो सर, मेरा ये Okay. रॉन्ग हुआ था। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम हिताक्षी। देखो मैं करता हूँ इसको, समझेंगे। मैं लॉजिक बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको ही करना है। मान लो कि यहाँ पे मेरा एक पोल है, टेलीग्राफ का पोल, मैं इसे दिखा रहा हूँ, ये पोल पकड़ लेते हैं, एंड देयर इज अ ट्रेन, एंड दिस ट्रेन हैज टू क्रॉस दिस पोल, ये पोल को, इस ट्रेन को क्रॉस करके जाना है। मान लेते हैं कि ट्रेन का लेंथ एल दिया है, और यही एल एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना है। तो जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगा, तो इसका मतलब कि ये जो ट्रेन होगा वो अब ऐसे हो जाएगा, है ना? ट्रेन जब यहाँ से एल लेंथ आगे निकल जाएगा तभी तो होगा ना। यहाँ का जो इंजन था, अभी ये इंजन यहाँ पहुंच गया, मतलब ये पोल को क्रॉस कर गया, करेक्ट? अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रेन को जब इस पोल को क्रॉस करना था, तो पोल को क्रॉस करने में ट्रेन के इंजन को कितना चलना पड़ा? यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया इंजन, तो क्या ट्रेन के इंजन को एल डिस्टेंस मूव करना पड़ा जस्ट टू क्रॉस द पोल, यस राइट? सो पोल जब ये क्रॉस कर रहा था इस केस में, एंड सिंस देयर इज नो एक्सीलरेशन, सो ऑब्वियस सी बात है, हम यूज कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो स्पीड मुझे पता नहीं, मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड v मीटर पर सेकेंड, आई हैव नो आइडिया। डिस्टेंस ट्रेवल करना उस पड़ा उसके इंजन को l, और टाइम लगा था उसको 15 सेकेंड्स। सो कैन बी से कि 15 into v is equal to l. Let me have this as equation number 1. एक मिनट, ये समझ में आया पॉइंट सभी को? यस सर। ये पोल था, ये ट्रेन का इंजन था, जब ये ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करके जाना है, तो इसका इंजन को यहाँ से मूव करके यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा? l डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो जस्ट टू क्रॉस द पोल, इफ वी आर यूजिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द इंजन विल बी l, स्पीड मान लेता हूँ v है, टाइम लगा उसको 15 सेकेंड्स का, so v will be equal to l by 15, and therefore l is equal to 15 into v. This we are having as equation number 1. अब क्या कह रहा है सेकेंड केस में? हाँ आदित्य, वेरी गुड, सुपर बेटा। अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि देयर इज अ टनल, मान लो मैं इसे टनल को दिखा देता हूँ। so, यहाँ पे एक मेरा टनल है, और ये टनल का जो लेंथ दिया है, दिस इज गिवन टू अस, एंड दैट इज व्हाट, 450 मीटर। अब ये ट्रेन को इस टनल को क्रॉस करके जाना है, अगेन सेम ट्रेन है, तो ऑब्वियसली लेंथ इसका भी वही रहेगा जो लेंथ पहले वाले केस में एल हो गया। अब ये ट्रेन का इंजन यहाँ है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ट्रेन को इस टनल को क्रॉस करके जाना पड़े है, मतलब ये ट्रेन ऐसे चला जाएगा, अब ये ट्रेन का इंजन यहाँ पे हो गया, मुझे बताइए बेटा ट्रेन के इंजन को कितना चलना पड़ा जस्ट टू क्रॉस द टनल? 450 plus L. 450 plus L. 450 plus L, 450 plus L चलना पड़ा। अब if I am using the concept in this case, which is speed is equal to what, distance over time, क्रॉस करने के लिए। सो स्पीड यहाँ पे ट्रेन सेम है, तो स्पीड भी इसका सेम ही रहेगा, v मीटर पर सेकंड, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि सेम ट्रेन था, सो स्पीड वही रहेगा। सो स्पीड के जगह पे आप v प्लेस करोगे, डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा इसको 450 प्लस ऑफ l, और टाइम लगा इसको 45 seconds. So if I'll be cross multiplying this, so 450 into v, 45 into v, sorry, is equal to 450 plus l. Now l की जगह पे we can place 15v here. So 45v, 450 plus 50. This will come this side. So that is 30 into v, 450. So implies v will be equal to 15, let's say, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वैल्यू हो गया v का, मतलब ट्रेन का वेलोसिटी जो यहाँ से मुझे मिला, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको ट्रेन का वेलोसिटी नहीं पूछा है, आपसे ट्रेन का लेंथ पूछा है। सो लेंथ इज इक्वल टू, वी नो हियर 15v, सो लेंथ इज इक्वल टू 15 into v, v के जगह पे 15 प्लेस कर दो, सो लेंथ विल बी 15 into 15, 225 will be the length of the train. Yes, you are very good beta.
समझ में आ गया लॉजिक, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ये Yes, बनना sir. चाहिए था, बनना चाहिए था, कुछ भी नहीं था। एक्चुअली फिजिक्स का प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं आता बेटा, सिर्फ आपको अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे और जितने इजीली आप उसका रफ स्केच बनाओगे उतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर मैं ये डायग्राम बनाए बगैर डायरेक्ट कैलकुलेशन पे जाता तो गलत हो जाएगा। पहले आप डायग्राम प्लॉट करो रफली एंड देन गो फॉर द कैलकुलेशन। ओके सर सर वो 450 प्लस एल क्यों लिया, वो समझ में नहीं आया। ठीक, पहले ये मेरा ट्रेन था एंड हियर वाज द इंजन ऑफ माय ट्रेन, है ना। ये टनल मैंने बताया आपको, इस टनल इज 450 मीटर, 450 मीटर का टनल दिया ऑलरेडी क्वेश्चन। ओके, अथर्व, अब जब ये दिया हुआ है, नाउ दिस ट्रेन हैज टू क्रॉस दिस टनल, ये ट्रेन को इस टनल को क्रॉस करके जाना है। जब ये ट्रेन इस टनल को क्रॉस करेगा मतलब ये ट्रेन ऐसा कुछ हो जाएगा, ये जो ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट होगा वो टनल के सामने हो जाएगा, तो टनल वो ट्रेन ने पूरा क्रॉस कर लिया होगा, राइट। सो ये ट्रेन का जो लास्ट कंपार्टमेंट है दैट शुड बी हियर, मतलब ट्रेन ने टनल को पूरा क्रॉस किया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन दिस ट्रेन हैज टू क्रॉस दिस टनल, तो ये इंजन को कितना चलना पड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक इंजन चला 450 मीटर और प्लस इतना इंजन और चला, इंजन तो अभी यहाँ है, तो इंजन कितना मूव किया, इज इट 450 मीटर प्लस एल? यस सर, अंडरस्टूड। So to cross the tunnel, the train has to move L plus 450 meter. Okay. Done. Shall I move ahead? आगे बढ़े? यस सर। Very good, great. Remaining students सबको clear है? हर्षल clear बेटा आपको एक point? यस। Okay. Next. Question में क्या रहा है? Next problem. A ball is thrown vertically upward with speed u. At the same time, ball B is released from the rest at a point. इसी टाइप का प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड, और इसको हमने सॉल्व किया था दोनों अप्रोच से, एक बार विदाउट यूजिंग द रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड दूसरी बार विथ यूजिंग द रिलेटिव अप्रोच। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉल ए, ये बॉल है, इसको हमने वर्टिकली ऊपर फेंका है एंड दिस वी हैव प्रोजेक्टेड विथ u मीटर पर सेकेंड upward. At the same time, ball B is released from the rest to a height h. तो मान लो ये हाइट h है और यहाँ से बॉल B है, बॉल B को जस्ट हमने ड्रॉप किया है। After time t, the velocity, the speed of A with respect to B, आपसे पूछा गया find, yes आदित्य, very good बेटा, find speed of A with respect to B, A with respect to B at after time t. So ये आपसे पूछा गया after time t, ये आपसे पूछा गया, कैसे करोगे? देखिए इसको डील करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बॉल को अगर मैंने यहाँ से ड्रॉप किया है, इफ आई हैव ड्रॉप दिस बॉल, सो अगर आपने बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। हमने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, करेक्ट। अब हम बॉल 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, डू द कैलकुलेशन फॉर बॉल 1 यानी बॉल ए। सो v इज इक्वल टू u प्लस at, ऑफ कोर्स हम लगा सकते हैं इसके लिए बॉल ए के लिए। हाँ क्यों रहा, बढ़िया बेटा, सही है। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इस पे भी g मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है g मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फॉर सिंप्लिसिटी वी आर assuming that the upward direction is plus and the downward direction is minus. अगर आपको उल्टा लेना है, you can take vice versa also. So ball 1 के लिए हम करेंगे v is equal to u plus at. So v initial velocity ऊपर की तरफ था plus acceleration of minus g into t. So implies velocity कितना हो जाएगा बेटा, u minus of gt at any time. Please let me have this. ये मेरा velocity हो गया a का। अब अगर हम सेम वे में बॉल b के लिए डिस्कस करें, so बॉल b नीचे आ रहा है, so v is equal to u plus at फिर से लगा दो। So velocity of ball b initial is 0 plus gt. So implies कि velocity of ball b कितना हो जाएगा बेटा, will it be equal to gt? Simply, अब आपसे पूछा गया velocity of ball with respect to velocity of ball
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपसे पूछा गया है. सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी will it be equal to velocity of a minus of velocity of b. अब ऑब्वियस सी बात है कि b वाले बॉल का वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा और a वाले बॉल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा. सो वन इज प्लस एंड द नेक्स्ट वन इज माइनस. सो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b आपसे पूछा गया है. वेलोसिटी ऑफ a कितना है? u माइनस ऑफ gt माइनस ऑफ माइनस gt. कि ये नीचे की तरफ था, therefore I have used the minus sign. So velocity of a with respect to b will be equal to what? U minus of gt plus of gt. This gt and gt will get cancelled. So from here what we are having, that velocity of a with respect to b will be simply equal to what? U. Am I clear? समझ में आया सभी का कैलकुलेशन? Yes, sir. Good. हर्षल? Yes, sir. जी. Yes, sir. Good. Sai, Siddhant? Clear बेटा all of you, everyone? Yes, sir. सिंपल बन जाना चाहिए. नेक्स्ट, टू बॉडीज. अच्छा, ये तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है. सर्कुलर पढ़ा है क्या आप लोगों ने? हैव यू डन विद दिस? Yes, sir. ओके. सो इसमें क्या कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई r1 एंड r2. सो देयर आर टू बॉडीज. एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी बी है. लेट्स से ये बॉडी मूव कर रहा है ऑफ अ सर्कुलर रेडियाई r1 और ये बॉडी मूव कर रहा है विद सर्कुलर रेडियाई r2 और दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है. इक्वल मासेस. सो टू बॉडीज इक्वल मासेस revolves in a circular orbit of radii r1 and r2 with the same time period. Same time period है. Same time period. आपसे पूछा गया find the ratio of their centripetal force. So they are asking you find ratio of their centripetal force. है ना. इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए a पकड़ लेते हैं. दिस वी आर हैविंग एज b. अच्छा, दोनों का टाइम पीरियड सेम है. टाइम पीरियड सेम होने का मतलब क्या है? दोनों केस में ओमेगा सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी. Yes, sir. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड. सो इफ दे आर हैविंग सेम टाइम पीरियड, 2 पाई कांस्टेंट है. मतलब इसके रोटेट करने का जो ओमेगा होगा, लेट्स मी से ओमेगा रेडियन पर सेकंड, इस केस में भी रोटेट करने का वही ओमेगा होगा. दोनों केस में ओमेगा सेम होगा और ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई बाय टाइम पीरियड. सिंस दोनों का टाइम पीरियड सेम है, therefore both will have the same ओमेगा. अगर आप इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लिखोगे Fa में, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर इनटू r1 और अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स Fb में लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर इनटू r2. दे आर हैविंग सेम मास, सेम ओमेगा, क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम है. सो अगर आप रेशियो लोगे यहाँ से Fa by Fb is equal to m ओमेगा स्क्वायर. हाँ से ना से, हाँ, वेरी गुड बेटा. m ओमेगा स्क्वायर r1 by m ओमेगा स्क्वायर ऑफ r2. सो m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो देयरफॉर Fa by Fb is equal to r1 by. खत्म. गुड क्यों रहा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. क्या था इस प्रॉब्लम में? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. गुड. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आए किसी का? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. सो रेन सीधे नीचे आ रहा है. वेरी गुड आदित्य. रेन सीधा नीचे आ रहा है and this rain is coming down with a speed of 4 kilometer per hour. A girl moves on a straight road with a velocity of 3 kilometer per hour. So girl is moving on a straight road with a velocity of 3 kilometer per hour. The apparent velocity of rain with respect to girl is, देखिए ऐसे अगर हम सोचेंगे, so actually आप देखो तो girl is going in this direction with a velocity of 3 kilometer per hour. और एक्चुअली ये रेन ऐसे फॉल कर रहा है. एक्चुअली रेन इज कमिंग डाउन. एक्चुअली दिस रेन इज कमिंग डाउन.
हाँ क्यों बराबर है बेटा, एक्चुअली रेन नीचे आ रहा है और रेन कैसे आ रहा है बेटा, दिस इज कमिंग डाउन विद 4 किलोमीटर पर आवर. सो फॉर सिंप्लिसिटी लेट मी हैव दिस एज एक्स एक्सिस और ये मैं y एक्सिस एज्यूम कर लेता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. स्नेहा गुड, x एंड y. सो वेलोसिटी ऑफ गर्ल, गुड अथर्व क्यों वेरी गुड बेटा. वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा, सिंस ये गर्ल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन मतलब दैट विल बी इक्वल टू 3i कैप किलोमीटर पर आवर. और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4j कैप किलोमीटर पर आवर. अब किसको x एज्यूम करना है किसको y एज्यूम करना है टोटली तुम्हारा चॉइस है. अब चाहे जिसके x कर लो, जिसको चाहिए आप उसको y कर. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल will be velocity of rain minus of velocity of girl. So velocity of rain with respect to girl will be equal to what? Velocity of rain कितना है 3i क्या और गर्ल कितना है 4j. So अभी आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, velocity of rain with respect to girl का मैग्नीट्यूड, this will be under root of 3 का स्क्वायर plus of 4 का स्क्वायर. So velocity of rain with respect to girl will be under root 9 plus of 16 which is what? Root of 25. Clear? So velocity of rain with respect to girl will be equal to 5 kilometers per hour. This is the right answer. So correct answer for this question was option number D. Is it clear beta? सबको calculation clear है? Yes, sir. Yes, sir. तो कार्तिक आपको क्लियर है बेटा? हर्षल, साई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. बाकी लोग भी बोलो. वरद, सृष्टि क्लियर बेटा कैलकुलेशन? यस सर. सी वन थिंग इज आपको आए नहीं आए गलत सही फर्क नहीं पड़ता, बस जस्ट कम्युनिकेट. बात करोगे तो अपने आप चीजें समझ में आने लगी, चुप बैठोगे तो नहीं होगा, बोलना पड़ेगा. ओके क्वेश्चन नंबर 9. ये अच्छा सवाल था, रिवर बोट वाला. हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 9? क्यों आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 9? यस और नो? ओके आदित्य का आ गया. गुड. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अ मैन स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर ऑफ विड्थ 100 मीटर. सो ये रिवर है और रिवर का विड्थ दिया हुआ 100 मीटर और एक आदमी यहाँ से इस वाले पॉइंट ए से स्विम करना चालू कर रहा है. सो अ मैन स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर ऑफ विड्थ 100 मीटर. व्हेन ही स्विम्स परपेंडिकुलर टू द वाटर करंट, मतलब जिधर मेरा रिवर फ्लो कर रहा था, रिवर करंट इस डायरेक्शन में मान लेते हैं 60 डिग्री अपस्ट्रीम. वेरी गुड स्नेहा, गुड बेटा बहुत बढ़िया. सो व्हेन माय रिवर करंट, ऐसे मान लो मेरा रिवर फ्लो कर रहा था मीटर पर सेकंड. सो ये आदमी रिवर करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फ्लो किया, तो ऐसे स्विम कर रहा है, हमेशा रिवर करंट के परपेंडिकुलर. व्हेन दिस मैन स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर वाटर करंट, he reaches the other bank 50 मीटर डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में. सो क्या कह रहा है कि जब ये परपेंडिकुलर फ्लो किया ना, तो ये ऐसे होके यहाँ से 50 मीटर डाउनस्ट्रीम चला गया, यहाँ से ये 50 मीटर इधर चला गया. डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है रिवर करंट के डायरेक्शन में, सीधा रिवर फ्लो कर रहा है आप उधर ही जा रहे, 50 मीटर डाउनस्ट्रीम. सो द एंगल टू द बैंक एट विच ही शुड स्विम टू रीच द डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट बी ऑन द बैंक. सो ये किस एंगल पे स्विम करना चाहिए था इसको, ताकि ये डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाता. मुझे एक बात बताओ बिफोर वी गो फॉर द कैलकुलेशन, मुझे एक बात बताइए, अगर इस बोट को यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट पे जाना था, इफ दिस बोट हैज टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, तो बोट को किधर डाइव मारना चाहिए था? लेफ्ट में. Left side. लेफ्ट. लेकिन ये लेफ्ट में तो मार नहीं रहा है, सीधा डाइव ले रहा है, तो इसलिए तो ड्रिफ्ट करके इधर चला गया. अच्छा ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है बोट का, वो कौन से वेलोसिटी की वजह से हो रहा है? रिवर की. River. अच्छा और ये जो बोट है वो रिवर को क्रॉस कर रहा है, वो कौन से वेलोसिटी की वजह से क्रॉस कर रहा है? VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. यस और नो? यस. Yes. सो लेट मी हैव दिस एज x एक्सिस एंड दिस एज माय y एक्सिस. हम लोग ऐसे इसको एज्यूम कर लेते हैं. so, अगर आप अलोंग y एक्सिस देखो, हाँ क्यों बराबर है बेटा, करेक्ट. अगर आप इसको ऐसे देखो
along y axis अगर हम करें, so along y axis अगर हम डिस्कस करें, so for this we can say कि एक्सेलरेशन वगैरह तो कुछ है नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो y एक्सिस के अलोंग स्पीड कितना है मेरा, vbr, वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो 100 बाय टाइम इज t. सो फ्रॉम हियर t विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 बाय vbr. लेट मी हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ विल गो फॉर अलोंग x एक्सिस. सो अगर आप अलोंग x एक्सिस देखोगे और इस केस में भी आप रिजल्ट यूज कर दो, विच इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका ड्रिफ्ट हुआ है वो किसकी वजह से ड्रिफ्ट हुआ है? सो दैट इज बिकॉज वेलोसिटी ऑफ रिवर. हाँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से. अलोंग एक्स एक्सिस तो ये मूव कर रहा है और रिवर की वजह से जा रहा है, टाइम तो ऑब्वियसली उतना ही लगेगा. जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ जाएगा उतने ही टाइम में ये ड्रिफ्ट भी करेगा. सो टाइम विल बी सेम ऑफ कोर्स. टाइम कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50 बाय वी आर. लेट मी हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 2. दैट इज 50 बाय वी आर. अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and equation number 2, so we are just comparing them. So आप देखो दोनों इक्वेशन में LHS में टाइम है and they are safe of course. So हम RHS को कंपेयर कर सकते हैं. 100 by VBR is equal to 50 by VR. कैंसिल हो जाएगा. So therefore VBR will be twice of VR. एक रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड कर लिया. अब अगर इसको डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है, if that has to move to directly opposite point, अगर इसको डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है, इस केस में क्या कंडीशन होगा, जैसे यहाँ से अगर हम देखें ऐसे, एंड दिस बोट हैज टू मूव फ्रॉम हियर, और यहाँ से मूव करके बोट को डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है. ऑब्वियसली फॉर दिस बोट को ऐसे कुछ ड्रिफ्ट लेना पड़ेगा, ऐसे डाइव लेना पड़ेगा. वी आर इस डायरेक्शन में था, और आपसे ये एंगल नहीं पूछ के आपसे ये एंगल पूछ रहा है ना, बैंक से पूछ रहा है. सो अगर आप VBR का कंपोनेंट तोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा कंपोनेंट, इज इट VBR इनटू cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा VBR इनटू VBR sin theta. sin थीटा. अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये बोट को यहाँ से चल के डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0, तभी ये डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे जा पाएगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Implies what? That VBR into cos theta will be equal to VR. So therefore cos theta will be equal to VR by VBR. अब देखिए VBR is 2 into VR. VBR is 2 into VR. So अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, so what we are having, that cos theta will be equal to VR. VBR के जगह पर रख देंगे 2 into VR. So this will get cancelled. So cos theta is 1 by 2. Now if cos theta is 1 by 2, so therefore theta will be equal to what? 60 degree. Or pi by 3. Yeah, pi by 3 or 60 degree, because option is in degrees, Siddhant. So we'll have to write in that form only. And if it is in radians, then the angle must be in radian. Yeah, correct. If it's there in radians in the options, you'll have to place that in radian, but here the option is in degrees, so we'll keep in that degrees only. 60 degree upstream. So the correct answer for this question is option number D. Am I clear, everyone? सबको समझ में आया कैलकुलेशन ये? Yes. Yes, sir. So how many of you got this right? कितने लोगों का ये सही आया? Just raise your hand. Okay, Kaustubh has got it right. Aditya, Shivam has got it right. Srishti का सही है, स्नेहा का सही. 7, 8. Okay, 8 students का सही. So next slide, please. हाँ, 1 second. Okay.
Okay. Next, the last question. Question number 10. Shall I go for the question number 10? Yes, sir. Question number 10 discuss करते हैं. We have done with this 9 हो गया complete. Question number 10. क्या कह रहा है कि a bird is flying towards north with a velocity of 40 km per hour. So velocity of bird दिया है 40 km per hour and this is towards north. So a bird is flying towards north with a velocity of 40 km per hour and train is moving with a velocity of 40 km per hour towards east. So train move कर रहा है 40 km per hour towards east. East की तरफ train जा रहा है. So what is the velocity of bird noted by a man in the train? Train में जो आदमी बैठा उसके लिए bird का velocity क्या होगा? Okay. So for this सबसे पहले तो आप एक काम करिए, you just plot the coordinates. Now let me have this as north, south ले लेते, this as east and this as west. अब क्या कह रहा है कि bird is going in 40 km per hour towards north. So इस direction में bird जा रहा है, and that with a velocity of 40 km per hour. And the train is going towards east with a velocity of 40 km again this is. So train इस direction में जा रहा है और ये भी 40 km per hour से जा रहा है. So just for the simplicity बेटा what we'll be doing is कि ये axis को आप x पकड़ लो और ये axis को आप y assume करो. So let me have this axis as x and this axis as y, x and y. अब आप क्या करोगे? Now what you'll be doing is, see, अब अगर आपने ये लिखा तो आपसे क्या पूछ रहा है? Velocity of bird with respect to train. So for this, velocity of bird with respect to train will be equal to velocity of bird minus velocity of train. ये आपसे पूछ रहा है. So velocity of bird with respect to train will be equal to what? Velocity of bird is 40 and that is along j cap, 40 j cap, and velocity of train is along I cap. So velocity of bird with respect to train अगर आप ऐसे लिखोगे, so that will be equal to what बेटा? Minus of 40 I cap plus 40 j cap. यही आएगा ना? So, हाँ, पुट क्यों रहा? So पहले velocity of bird with respect to train का आप magnitude निकाल लीजिए. So velocity of bird with respect to train का अगर हम magnitude निकाल दें, so under root of 40 का square plus of 40 का square implies the magnitude of velocity of bird with respect to train, this will be equal to under root of 40 root 2 kilometer per hour. ये हो जाएगा हमारा velocity. Okay. ये तो magnitude. Now what about the direction? Direction किधर होगा? Direction क्या होगा इसका? कैसे एनालाइज करेंगे डायरेक्शन के बारे में? आदित्य सिंह नॉर्थ वेस्ट. अब देखो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन को अगर आप देखो, सो ये माइनस आई कैप है और आई कैप आपने ईस्ट एज्यूम किया था. सो बर्ड का वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में ईस्ट में ना होके वेस्ट में है 40 और नॉर्थ तो एज इट इज है. सो विल इट बी नॉर्थ वेस्ट? Yes, sir. Sir, can you explain again? yeah, explain. Wait for a second. नॉर्थ वेस्ट कैसे इसको डील करोगे आप? जस्ट सी, आप देखो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन को आप एनालाइज करिए. वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखो, ये आपका आया था विच इज व्हाट बेटा? माइनस ऑफ 40 आई कैप प्लस ऑफ 40 जे कैप. यही था ना मेरा बर्ड का वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, राइट? अब आई कैप में और नेगेटिव आई कैप में, और आपने पॉजिटिव आई कैप इस डायरेक्शन को देखा है एंड यू आर हैविंग माइनस, मतलब ईस्ट में ना होके वो वेस्ट में होगा. सो बर्ड का वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स में है और प्लस एक्स मैंने ईस्ट को पकड़ा है, तो ये वेस्ट में हो जाएगा और नॉर्थ तो एज इट इज है. तो क्या बर्ड का वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट एनालाइज दिस बेटा. ये कंफ्यूज होता है, एग्जामिनेशन में भी कंफ्यूज होगा. एक बार पहले सोचो अच्छे से, व्हाई आई एम सेइंग नॉर्थ वेस्ट. हमेशा ये देखना, यहाँ पे देखना. सी हियर,
So velocity of bird with respect to train is minus 40 I cap plus of 40 j cap. It is minus I cap. माइनस आई कैप का मतलब क्या है? आई कैप मैंने इस डायरेक्शन को पकड़ा है, तो माइनस आई कैप का मतलब हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ आपका जे कैप हो गया, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बर्ड विल बी देयर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। Am I clear? प्रॉपर्ली समझ में आया कैलकुलेशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Fine. पूरा पेपर समझ में आ गया सभी को? Is it clear with the complete paper? Yes, sir. Okay, great. हर्षल आपको समझा बेटा? हाँ सर। ओके, वरद, क्योरा, तन्वी, शांतनु क्लियर है बेटा कैलकुलेशन पूरा पेपर का? ओके, कितने लोगों का 40 मार्क्स आया था? 40 आउट ऑफ 40, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? अच्छा, मैं रिजल्ट देख लेता हूँ। ओके, अगस्त का आ गया था, फाइन। अंकुश का भी आया था, गुड। 2 लोगों का आया, और कौन? बस सिर्फ 2 लोग। ओके, कितने लोगों का 30 प्लस आया था? 35 प्लस, सॉरी, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 35 प्लस? 3 लोग, 4, 4 स्टूडेंट्स, 5, ओके, 5 लोगों का 35 प्लस। अच्छा, हाउ मेनी 5 लोग 35 प्लस? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 30 अबव? 30 अबव कितने लोगों का था? सेम रेशियो, 7, ओके, 8, ओके, ठीक है, ठीक है, विल वाइंड अप बेटा अगले लेक्चर में। गुड करा, एक और थोड़ा चाहिए, अगली बार बेटा ट्राई करो 40 के आसपास आने का, जब ऐसा टेस्ट होगा तो। फाइन, विल वाइंड अप फॉर टुडे एंड आई विल बी शेयरिंग वन असाइनमेंट। मैंने आपके साथ ये बोट और रिवर का असाइनमेंट शेयर किया है क्या बैच 1 बैच 2 के साथ में? एक किया था जिसमें वेक्टर्स और बोट और रिवर दोनों थे, दोनों इंक्लूडेड थे? ओके, लेकिन वो रेन और अम्ब्रेला वाला नहीं किया था। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे पास असाइनमेंट रहेगा, जस्ट शेयर द असाइनमेंट। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा, अगले लेक्चर में आगे और डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर क्लियर है सभी को? Yes, sir. Clear. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Bye. Yes, sir. We'll wind up for today. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye.